Good morning, students. Today we are going to start our next topic, that is isomerism in haloalkanes and haloarenes. Yesterday we have done the nomenclature of haloalkanes and haloarenes, and today we are going to start this next topic, that is isomerism in haloalkanes and haloarenes. So first of all, understand what are isomers. These are the compounds having same molecular formula but different spatial arrangement of constituent atoms. सी आइसोमेरिज्म क्या होंगे? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है, बट जो एटम्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. सच फॉर्म्स आर नोन एज आइसोमर्स. किसी भी कंपाउंड की ये जो फॉर्म्स होंगे इनको क्या बोलेंगे हम, आइसोमर्स. एंड फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म. इस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म. तो आइसोमेरिज्म क्या हुआ? The compounds having same molecular formula but different spatial arrangement of atoms are known as isomers, and phenomenon is known as isomerism. So, among the isomerism, first of all we will start with first type of isomers. These are what? These are isomers. These are chain isomers. Or chain isomerism. First type of isomerism is chain isomerism. So how will you define chain isomerism? These are the compounds having same molecular formula but differ in number of carbon atom in the main chain. कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट जो पेरेंट चेन है उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे. सो द आइसोमर्स which have same molecular formula but differ in number of carbon atom in the parent chain. See, the compounds are having what, same molecular formula but there is difference in number of carbon atoms in the main chain. So here I am writing the compound. The example is CH3, CH2, 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 Br. ओके, अगर हम इस कंपाउंड का नाम देखें, द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 carbon atoms in the main chain, and bromo will act as prefix. So name of the compound will be 1-bromo-pentane. Name of compound is 1-bromo-pentane. Okay. Now see, नेक्स्ट जो इसका जो आइसोमर हो सकता है, दैट विल बी CH3, CH3, CH2, Br. Now the name of the compound will be, see, one more carbon atom will be there, so this will be the another isomer of the compound. See, 1, 2, 3, 4 and 5. There are 5 carbon atoms and name of the compound will be what, 3-methyl and 1-bromo 3-methyl butane. 1-bromo then 3-methyl then butane.
this is also what? Isomer. This is also a chain isomer of this compound. Another isomer of this compound which is possible, that is, see, another isomer of this compound is 1, 2, 3, 4. Now here you can see the name of the compound will be 1-bromo 2-methyl butane. And what about this compound? 1, 2, 3. Here at second carbon atom there is presence of 2-methyl group, and name of the compound will be what? 1-bromo 2,2 dimethyl, then propane. So all these compounds are which type of isomers? These are what? These are chain isomers. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो वो सेम रहेगा. अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें हम, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5 and 3 to 5 and 5 to 7 and to 9 and to 11 C5H11Br. किसी भी कंपाउंड में देख सकते हो 3, 3, 6 and 2, 8 and 3, 11 hydrogen, and number of carbon atoms will be what? 5. So C5H11Br. This will be the molecular formula. The molecular formula is remaining same, but the spatial arrangement of the atom is such that there are what? Different number of carbon atoms in the main chain, main parent chain. So such kind of isomers are known as what? Chain isomers. Means carbon atom की chain जो है वो different होगी. ठीक है, कहीं पे 4 कार्बन एटम है, कहीं पे 3 कार्बन एटम आ रहे हैं, कहीं पे जो है वो 5 कार्बन एटम आ रहे हैं पेरेंट चेन में. सो सच टाइप ऑफ आइसोमर्स आर नोन एज चेन आइसोमर. नाउ यू कैन राइट डाउन ए क्वेश्चन. यू हैव टू ड्रॉ द चेन आइसोमर्स ऑफ 1-bromo ब्यूटेन. ठीक है, 1-bromo ब्यूटेन के डिफरेंट चेन आइसोमर्स है वो आपको ड्रॉ करने हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट जो है डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ 1-bromo ब्यूटेन. So here we have CH3, CH2, 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 Br. This compound is 1, 2, 3, 4. This is N-butyl bromide or 1-bromo butane. The name of the compound is 1-bromo butane. ठीक है, अब इसका जो है हमें और चेन आइसोमर जो वो ड्रॉ करने हैं. सो दूसरा अगर हम चेन आइसोमर इसका ड्रॉ करें, देन CH3 CH and here we have CH2 Br. सेकेंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आ गया? मिथाइल ग्रुप आ गया. अब यहाँ पे अगर हम मेन कार्बन एटम की चेन देखें तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम आ रहे हैं? 3 कार्बन एटम्स आ रहे हैं. यहाँ पे जो नेम हो जाएगा कंपाउंड का, that will be 1-bromo 2-methyl, 1-bromo 2-methyl and 3 कार्बन एटम्स हैं, then propane. ठीक. अब सिमिलरली एक और आइसोमर जो इसके केस में पॉसिबल हो सकता है, that will be here we will have CH3 group and here we have Br. So मेन चेन जो है वो यही 3 कार्बन एटम्स की ही रहेगी. ठीक है, सो इसके केस में अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे जो नाम हो जाएगा कंपाउंड का 1, 2, 3. जो कंपाउंड है वो डिफरेंट बन रहा है हमारे पास. यहाँ पे नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2-bromo 2-methyl and propane. ठीक है, सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ आइसोमरिज्म. सो चेन आइसोमरिज्म के केस में क्या होगा? कार्बन एटम की जो चेन होगी वो डिफरेंट होगी. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज पोजीशन आइसोमरिज्म. एज द नेम इंडिकेट्स, नाम ही यहाँ पे बता रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? पोजीशन आइसोमरिज्म के केस में द कंपाउंड्स विल हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर विल बी डिफरेंट पोजीशन ऑफ द हैलोजन. ठीक है, जो हैलोजन है, जो फंक्शनल ग्रुप है इसके केस में, उसकी जो पोजीशन है दैट विल बी डिफरेंट. सो दीज आर द आइसोमर्स, these are the isomers
isomers having same molecular formula, but differ in the position of functional group. But differ in the position of a functional group. Such kind of isomers are known as a position isomerism. एक बार फिर से देख लो, ऐसे आइसोमर जिनके केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट डिफरेंस कहाँ पे अराइज हो रहा है, इन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ. जैसे here I have CH3, CH2, CH2, Cl and CH3, CH, Cl, CH3. Now see what will be the name of this compound. 1, 2, 3. The name of the compound is 1-chloropropane. And what about this compound? 1, 2, 3. The name of the compound is 2-chloropropane. So if we talk about the molecular formula, so molecular formula की अगर बात करें तो molecular formula है C3, 3, 2, 5 and 2, 7, C3H7Cl. molecular formula दोनों के केस में सेम है but there is difference in the position of the halogen. Here halogen is present at the first carbon atom and here halogen is present at the second carbon atom. इस तरह के आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म. हुआ क्लियर? पोजीशन आइसोमेरिज्म के केस में जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी जो पोजीशन है वो डिफर कर रही है. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज रिमेनिंग सेम. एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. जैसे CH3, CH2, 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 Cl. इसी का एक और आइसोमर लिख दिया मैंने. एंड CH3, CH, Cl, CH2, CH3. Here you can see 1, 2, 3, 4. देखो क्या था, फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है और यहाँ पे 1, 2, 3, 4. सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है हेलोजन. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1-chlorobutane. And what about this? This is 2-chlorobutane. So 1-chlorobutane and 2-chlorobutane किस तरह का रिलेशनशिप है इनमें? These are what? These are which type of isomers? These are position isomers. ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन जो है वो क्या कर रही है? डिफर कर रही है. ठीक है, इस तरह के आइसोमर्स को क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर्स. क्लियर? नेक्स्ट अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें पोजीशन आइसोमेरिज्म में तो ये है. जैसे मेरे पास कंपाउंड है, द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1,2. 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन. पोजीशन जो है वो डिफरेंट है. नाउ क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है, क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है. 1, 2, 3. द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन. नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें, here we have 1, 2, 3, 4. The name of the compound is 1,4 dichlorobenzene. So this is 1,2 dichlorobenzene. Here this is 1,3 dichlorobenzene. And what about this compound? 1,4 dichlorobenzene. So the compounds are having same molecular formula but there is difference in the position of the functional group and all these are known as what? Position isomerism. So इस तरह के आइसोमर्स वो एग्जिस्ट करेंगे किन में? जो हमारे पास हेलो एल्केन्स है एंड हेलो एरीन्स है. So students, next is preparation of haloalkanes and this method is first जो method हम डिस्कस करने जा रहे हैं. This is preparation of haloalkanes
from alcohols. From alcohols, ठीक है. सो अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे? सी, अल्कोहल्स हमारे पास जो भी अल्कोहल्स है, मैं अल्कोहल को डिनोट कर रहा हूं ROH से. R stands for alkyl group and OH is the functional group present in case of alcohol. So alcohols are treated with halogen acid. किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? हेलोजन एसिड के साथ ट्रीट किया. किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में. एनहाइड्रस ZnCl2. Here we have anhydrous ZnCl2. anhydrous zinc chloride की प्रेजेंस में. It is a catalyst. इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है and see how the reaction will take place. OH negative, H positive. Water will be eliminated and it will form RX. ठीक है. अब यहां पे मैंने एग्जाम्पल चेंज कर दिया. सपोज आई हैव CH3OH and it is treated with HCl in the presence of anhydrous zinc chloride. The product will be what? CH3Cl along with formation of water. If I have CH3CH2OH, it will be treated with HCl in the presence of anhydrous zinc chloride and it will form CH3CH2Cl plus water. Here I have taken primary alcohol and अगर इस रिएक्शन की बात करें, प्राइमरी अल्कोहल की प्रेजेंस में, प्राइमरी अल्कोहल का जो रिएक्शन है, that reaction will take place more time, longer time, and ये रिएक्शन जो है वो किस कंडीशन में होता है? ये हीट करने पे ये रिएक्शन जो वो होता है. जो अल्काइल हैलाइड इसके केस में फॉर्म होगा, ये इमीडिएटली फॉर्म नहीं होगा, ये जो वो हीट करने से फॉर्म होगा. तो सर्टेन जो इसके केस में टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर कंडीशन है, टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड है, तो एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है यहाँ पे. तो रिएक्शन मिक्सचर को क्या करना पड़ता है? हीट करना पड़ता है. सो इफ आई एम टेकिंग सेकेंडरी अल्कोहल, अगर मैं यहाँ पे कोई सेकेंडरी अल्कोहल लिख रहा हूँ जैसे CH3 CHOH, अगर इसको HCl के साथ ट्रीट किया, इट विल फॉर्म CH3 CHCl एंड CH3 प्लस H2O. ठीक है. तो यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड फॉर्म हो रहा है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, और ये जो अल्कोहल था ये भी किस तरह का अल्कोहल था? ये सेकेंडरी अल्कोहल था. इसी तरह से अगर टर्शियरी अल्कोहल यूज करेंगे, सो ये मैं यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल लिख रहा हूँ CH3 यहाँ पे भी CH3OH. सो टर्शियरी अल्कोहल का जो रिएक्शन है वो फास्ट होता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में एंड इट विल फॉर्म व्हाट? अल्काइल हैलाइड. ये इजिली जो है वो अल्काइल हैलाइड फॉर्म कर देगा. CH3CH3Cl और साथ में वाटर जो है वो लिबरेट होगा. दिस मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड HCl, दिस मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकास रिएजेंट. इस रिएजेंट को और क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट. एंड दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल. जो टर्शियरी अल्कोहल है, इनके केस में जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है. दैट इज व्हाई टर्शियरी अल्कोहल्स विल रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट इजिली एंड इमीडिएटली रिएक्ट कर जाते हैं, तो टर्बिडिटी जो वो एकदम से अपीयर हो जाती है. वंस अगेन आई एम राइटिंग द रिएक्शन ऑफ अ टर्शियरी अल्कोहल विद दिस ल्यूकास रिएजेंट. सो वी हैव टर्शियरी अल्कोहल CH3 एंड OH, और इसको मैंने ट्रीट किया किसके साथ? HCl के साथ. ठीक है. किसकी प्रेजेंस में? जिंक क्लोराइड की भी जरूरत इसके केस में होती नहीं है. सो OH हट जाएगा और उसकी जगह पे Cl नेगेटिव जो अटैच हो जाएगा. तो CH3 एंड हियर वी विल हैव क्लोरीन along with formation of water. ठीक है. सो ये रिएजेंट मैंने जैसे आपको बताया, विद दिस रिएजेंट इज नोन एज मिक्सचर ऑफ HCl and ZnCl2. दिस इज नोन एज व्हाट? ल्यूकास रिएजेंट. ठीक है. सो इन दिस वे alcohols can be converted into what?
एल्काइल हैलाइड स्पेसिफिकली यहाँ पे हमने किसमें कन्वर्ट किया, क्लोराइड में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग ल्यूकास रिएजेंट। एल्कोहल से ही और मेथड जो है वो भी यूज किए जा सकते हैं। सपोज इफ आई एम ट्रीटिंग द एल्कोहल, कोई भी मेरे पास जैसे एल्कोहल है और इसको मैं ट्रीट कर रहा हूं विद PCl3, किसके साथ ट्रीट किया, PCl3 के साथ ट्रीट किया, देन so here you can write the heading by reaction of alcohol with PCl3 और PCl5। ठीक है, PCl3 के साथ ट्रीट किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCl फॉर्म हो गया along with formation of H3PO3। सो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो यूज हो जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के जो वो रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ CH3OH, PCl3 के साथ ट्रीट किया, प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हो। CH3CH2OH है, इसको PCl3 के साथ ट्रीट किया, प्रोडक्ट्स आप फॉर्म कर सकते हो। बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस H3PO3। कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है, 3 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, ये भी 3 मॉलिक्यूल्स आ जाए। सिमिलरली 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड along with formation of H3PO3। ठीक है, नेक्स्ट हम रिएक्शन जो करने वाले हैं वो रिएक्शन है PCl5 के साथ। तो अल्कोहल जो है वो PCl5 के साथ किस वे में रिएक्ट करेंगे। सी, अब अल्कोहल्स को ही हम किसके साथ ट्रीट करें, फ्रॉम अल्कोहल्स बाय यूजिंग PCl5। ठीक है, so here we have alcohol ROH and we have treated this alcohol with PCl5. It will form RCl along with formation of POCl3, that is phosphorus oxychloride, along with formation of HCl. See, here I have CH3OH. It is treated with PCl5. You can easily form the products. Here I have ethyl alcohol CH3CH2OH. It is treated with PCl5. You can easily form the products. And here I have CH3CH2OH. And it is treated with PCl5. You can easily form the products. बताओ इस केस में क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3Cl along with formation of POCl3 along with formation of HCl। मिथाइल क्लोराइड बन रहा है, POCl3 बन रहा है, HCl फॉर्म हो रहा है। इस केस में क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl along with formation of POCl3 and HCl। नेक्स्ट केस में देखो CH3CH2CL along with formation of POCl3 and HCl। ठीक है, सो ये प्रोडक्ट्स है वो इजिली फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, इथाइल क्लोराइड फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे एन प्रोपाइल क्लोराइड जो फॉर्म हो रहा है। किसके साथ ट्रीट किया, PCl5 के साथ ट्रीट किया। किस वे में रिएक्ट कर रहा है, reaction is in front of you. You can note down these reactions and you can carry out various reactions like this. So PCl3 यूज किया जा सकता है, PCl5 यूज किया जा सकता है, और हमने जो पढ़ा वो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और HCl का मिक्सचर यूज किया जा सकता है। और एल्कोहल्स को हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एल्काइल हैलाइड्स में। क्लियर। नेक्स्ट इज preparation of haloalkanes from alcohols by using SOCl2. This SOCl2 is also known as thionyl chloride. So again we have alcohol को ट्रीट किया किसके साथ, thionyl chloride के साथ, SOCl2 के साथ। ठीक है, so what will happen, it will form RCl along with formation of HCl, gaseous state में होगा, eliminate हो जाएगा, along with formation of SO2, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैसियस स्टेट में होगा, ये भी एलिमिनेट कर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। सिंस HCl गैसियस स्टेट में है, अपने आप ही एलिमिनेट हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैसियस स्टेट में है, ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में सिर्फ क्या बच जाएगा, एल्काइल हैलाइड जो बच जाएगा। ठीक है, so you have CH3OH and this CH3OH is treated with thionyl chloride. You can complete the reaction
you have CH3 CH2OH that is ethyl alcohol, इसको ट्रीट किया थायोनाइल क्लोराइड के साथ, you can still complete the reaction. You have CH3 CH2OH and it is treated with SOCl2, you can easily complete the reaction. See, in this case methyl chloride will be formed, in this case ethyl chloride will be formed, and in this case N-propyl chloride will be formed along with formation of a, here I have eliminated SO2 plus HCl, HCl भी गैसियस स्टेट में होगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, SO2 एलिमिनेट हो गया, HCl ये भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे SO2 गैस है, ये भी एलिमिनेट होगी, HCl है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है. So in this way you can complete the reactions. ठीक है. So all these are the methods of preparation of alkyl halides from alcohols. ठीक है. कौन कौन से रिएजेंट यूज किया? PCl5 यूज किया, PCl3 यूज किया, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड HCl यूज किया, हेलोजन एसिड यूज कर सकते हैं, HCl यूज कर सकते हैं, HBr यूज कर सकते हैं, HI यूज कर सकते हैं. ठीक है. वो HCl को रिप्लेस कर देना है आपने, किससे रिप्लेस कर देना है? HBr से रिप्लेस कर सकते हो, HI से रिप्लेस कर सकते हो. कॉरेस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन जब वो फॉर्म हो जाएगी, ब्रोमो एल्केन अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो HBr के साथ ट्रीट कर दो. आयोडो एल्केन करनी है प्रिपेयर तो रिफ्लक्सिंग कर सकते हो, किसकी प्रेजेंस में? HI की प्रेजेंस में. ठीक है. OH हट जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, साथ में जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन है वो अटैच हो जाएगी. फिर आगे हमने ट्रीट किया जैसे SOCl2 के साथ, बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स. रीजन यहाँ पे क्या बन जाता है? जो भी आपके पास साइड प्रोडक्ट्स हैं वो एलिमिनेट हो रहे हैं, किस फिजिकल स्टेट में? गैसियस स्टेट में एलिमिनेट हो रहे हैं. इट इज इजियर टू सेपरेट दीज प्रोडक्ट्स. जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं उनको सेपरेट करना क्या है? इजियर है. ठीक है. सो यू कैन नोट डाउन दीज रिएक्शंस. Next we will study preparation of alkyl halides from alkenes. Alkenes and alkynes. ठीक है. हाइड्रोकार्बन से किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे? हाइड्रोकार्बन में हमारे पास आ गई एल्केन्स एंड एल्काइंस. ठीक है. तो वन बाय वन जो है हम प्रिपेयर करेंगे, एल्केन से भी, एल्कीन से भी और एल्काइन से भी. ठीक है. सारे के सारे मेथड जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स. ठीक है. हेलो एल्केन्स, एल्काइल हैलाइड्स हमें प्रिपेयर कर रहे हैं किससे? एल्केन से. सो सपोज हियर आई हैव मीथेन एंड मीथेन इज अंडरगोइंग क्लोरिनेशन. मीथेन की क्लोरिनेशन हो रही है किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरिनेशन जो है हो रही है. नाउ it will form methyl chloride CH3Cl along with formation of HCl. सी, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन HCl फॉर्म हो गया और एक क्लोरीन उस हाइड्रोजन की जगह पे जो वो अटैच हो जाएगी. देन फर्दर रिएक्शन कैन टेक प्लेस. ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है. CH3Cl फिर से रिएक्ट कर सकता है किसके साथ? Cl2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड इट विल फॉर्म CH2Cl2 along with liberation of HCl. क्लियर? सो जो CH3Cl बना था उसका फिर से रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? क्लोरीन के साथ, टू फॉर्म CH2Cl2 along with formation of HCl. जो मिथिलीन क्लोराइड CH2Cl2 फॉर्म हुआ, ये फिर से क्लोरीन के साथ, इसकी फिर से क्लोरिनेशन हो सकती है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकता है टू फॉर्म CHCl3. दिस CHCl3 इज आल्सो नोन एज व्हाट? क्लोरोफॉर्म. इसको और क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म. HCl फॉर्म हो रहा है साथ में साइड प्रोडक्ट. अब CHCl3 is further undergoing chlorination to form CCl4 and HCl. This CCl4 is known as carbon tetrachloride. CCl4 को और क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड. सो इस तरह से जो एल्केन्स हैं उनकी हैलोजिनेशन कैरी आउट की जा सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में. रिएक्शन जो वो हो रहा है, एंड द रिएक्शन विच आर टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस. ठीक है. सो केमिकल काइनेटिक्स में हमने स्टडी किया था फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होता है. सो द रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो रिएक्शन के लिए, जो इनिशिएशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट. सो यहाँ पे जो H न्यू लिख रखा है, सनलाइट से, सन से जो एनर्जी आती है, रेडिएशन की फॉर्म में जो एनर्जी आती है, फोटोन्स की फॉर्म में जो एनर्जी आती है, एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटोन इज डिनोटेड बाय सिंबल H न्यू. सो
यहाँ पे मीथेन, मीथेन की क्लोरीनेशन हुई तो मिथाइल क्लोराइड बना, मिथाइल क्लोराइड की फर्दर क्लोरीनेशन हो रही है तो मिथिलीन क्लोराइड बन रहा है, मिथिलीन क्लोराइड की फर्दर क्लोरीनेशन हो रही है तो क्लोरोफॉर्म बन रहा है, क्लोरोफॉर्म की अगर फर्दर क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो क्या फॉर्म हो रहा है हमारे पास, CH4 प्लस 4 molecules of Cl2 in the presence of sunlight, it will form CCl4 along with formation of 4 molecules of HCl. This will be the overall reaction. ठीक है, so in this way methane is undergoing chlorination in the presence of sunlight. So in this way we can prepare alkyl halides. Specifically we have prepared here alkyl chlorides in the presence of sunlight from एल्केन्स। ठीक है, किससे प्रिपेयर किए हमने, ये एल्केन से प्रिपेयर किए, एल्केन्स की क्लोरीनेशन से। नेक्स्ट जो मेथड आता है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्कीन्स। सो नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्कीन्स फ्रॉम एल्कीन्स एंड हियर आई एम टेकिंग फर्स्ट एल्कीन दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड हियर आई एम कैरिंग आउट इट्स रिएक्शन विद HCl। किसके साथ ट्रीट किया इसको, HCl के साथ ट्रीट किया। एंड See, this is an example of symmetrical alkene। किस तरह की एल्कीन मैंने ले रखी है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो यहाँ पे कहीं पे भी एडिशन हो सकता है Cl नेगेटिव का और कहीं पे भी एडिशन हो सकता है H पॉजिटिव का, कोई स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंगली एडिशन नहीं होगा। जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे दैट विल बी CH3 CH2 Cl। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। नाउ हियर आई एम टेकिंग अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है एंड हियर वी विल फॉलो जो एडिशन है दैट विल बी इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनी कब्स रूल। किस रूल के अकॉर्डिंगली एडिशन होगा, द एडिशन विल टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनी कब्स रूल। एंड व्हाट इज मार्कोनी, हियर एडिशन विल टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनी कब्स रूल। एंड व्हाट इज मार्कोनी कब्स रूल, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन एटम which contain lesser number of hydrogen atom across the double bond. See, the negative part of the attacking reagent, here attacking reagent is HCl and positive part is H positive and negative part is what, Cl negative. So what is Marconi-Krebs rule? Marconi-Krebs rule is the negative part of the attacking reagent will go to that carbon atom which contain lesser number of hydrogen atom across the double bond. First of all we will see the carbon atoms across the double bond. Now the negative part of the attacking reagent will go to that carbon atom which contain lesser number of hydrogen atom. So negative part means Cl negative will go to this carbon atom, while the positive part of the attacking reagent will go to that carbon atom which contain what, greater number of hydrogen atoms across the double bond. So the product will be CH3 CH Cl and CH3. This will be the product. And here if I am showing the addition of HBr, अब यहाँ पे HBr का addition है, then again the addition will take place in accordance with Marconi-Krebs rule. The product will be this is what, 2-chloropropane and this is what, 2-bromopropane. ठीक है, सो यहाँ पे 2-bromopropane फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे 2-chloropropane जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हेलोजन एसिड का आप एडिशन कर सकते हो। हेलोजन एसिड का जैसे एडिशन कर रहे हैं एल्कीन में तो क्या हो रहा है, जो नेगेटिव पार्ट है दैट इज गोइंग टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, व्हाइल द पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अक्रॉस द डबल बॉन्ड। ठीक है, next is preparation from alkenes, but now here we will add the halogen. अब यहाँ पे क्या करेंगे, halogen का addition करेंगे। Suppose here I am adding Cl2 and in the presence of this molecule this Cl2 will get polarized and it will partial polarization will take place and it will form Cl partial positive charge will come on one chlorine and another chlorine will acquire partial negative charge. So here product will form CH2, one chlorine will attach here, one chlorine will attach here, and all this will happen in the presence of this pi electron cloud.
इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की प्रेजेंस में ये जो क्लोरीन है Cl2 मॉलिक्यूल है, इट गेट्स पोलराइज्ड एंड it will split into these chlorines will acquire partial positive and partial negative charges like this. Non-polar molecule था but delta positive, delta negative, and then the addition will take place and the product is what? 1,2 dichloroethane. Name of product is 1,2 dichloroethane. So this is the product which is formed. Similarly, if I have taken CH3, CH double bond, CH2, and here I am showing the addition of Br2, then the product will be CH3, CH, Br, and CH2, Br. The name of the product is, numbering will be done from this side. The name of the product is 1,2 dibromo 1,2 dibromopropane. Clear? So in this way the addition will take place and alkyl halides are formed. ठीक है? So इस वे में अब ये जो डाई हैलाइड्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे जो हेलोजन प्रेजेंट है, द हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन एटम्स. जो हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो डिफरेंट कार्बन एटम्स से प्रेजेंट है. इस तरह के डाई हैलाइड्स को हम क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हैलाइड्स. ठीक है. और जेमिनल डाई हैलाइड्स के केस में क्या होगा? सेम ही कार्बन एटम पे दोनों के दोनों हेलोजन्स वो प्रेजेंट होंगे. उस तरह के डाई हैलाइड्स को क्या बोलेंगे? जेमिनल डाई हैलाइड्स. तो यहाँ पे तो विसिनल डाई हैलाइड्स ही फॉर्म हो रहे हैं. सो चाहे आपके पास कोई भी एल्कीन हो, उसमें आप हेलोजन का एडिशन कर सकते हो और 1,2 डेरिवेटिव जो जैसे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वैसे ही डिफरेंट पोजीशन पे हेलोजन जो जा सकते हैं. जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा उस पोजीशन पे हेलोजन जो जा सकते हैं. ठीक है. सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर द एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम एल्कीन्स. ठीक है. एल्कीन से हम एल्काइल हैलाइड्स को इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं. इसके अलावा और जो आता है हमारे पास वो एंटी मार्कोनी-कप्स रूल है. एंटी मार्कोनी-कप्स रूल कहाँ पे होता है? ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HBr to unsymmetrical alkene in the presence of a peroxide. एंटी मार्कोनी-कप्स रूल इज आल्सो नोन एज अ पेरोक्साइड इफेक्ट. ठीक है. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.